आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जीडी गोयनका स्कूल, विश्व स्तरीय शिक्षा का बिहार में एकमात्र स्कूल, सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, एलईडी टीवी और केंट आरओ के अधिकृत विक्रेता, केबीसी ब्रॉडबैंड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस। Parents sending their child outside Bihar because of no good schools can now send their children in GD Goenka Public School in Ranipatra, Purnia, one of the best schools in the country, and help them become an all-rounder with their world-class facilities. The faculty at GD Goenka has been specially trained and called from outside to ensure high-quality education and to include practical studies. Apart from classroom studies, the students at GD Goenka put their learning in practical with the help of well-equipped labs. Beside academics, GD Goenka offers to a huge variety of extracurricular activities. Your child will have an opportunity to get well trained in horse riding, archery, shooting, squash, lawn tennis, billiards and basketball. Not only this, your child will even get an opportunity to enhance himself and herself in the field of music and dance. The students will get professionally trained to play various instruments like guitar, harmonium, flute. They will even learn various forms of dance like Bharatnatyam, Kathak, jazz and salsa. Your child will even have an access to a wide variety of books at GD Goenka's vast library where knowledge meets the student. The school provides a splendid facility of hostels for those who wish to stay in the campus, giving the environment of home away from home, is rich in nutrients, and there is a regular supervision over the quality of food, keeping in mind the health of residential and non-residential students. During summers, your child will not complain about the heat anymore, as GD Goenka is fully air-conditioned, so are its buses. At GD Goenka, the enthusiastic environment and the constant guidance from the teacher will set your child's future to a journey of success. As GD Goenka follows the ideology of no child left behind. To see your child prosper, please contact GD Goenka Public School, Matia Chowk, Ranipatra, Katia Purnia Road, Purnia. The toll-free number is 1800 3131 2222. The phone numbers are 76728 22222 or 23 or 24. सती सिक्योरिटी सिस्टम्स डिजिटल कटिहार अभियान की शानदार शुरुआत। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विसेज, डिजिटल एलईडी टीवी, सीसीटीवी कैमरे, स्पाई कैमरे, मनी काउंटिंग मशीन, लैपटॉप एंड कंप्यूटर एसेसरी, एयर कंडीशनर, डिजिटल एलईडी लाइट्स, वीडियो डोर फोन्स, फायर अलर्ट्स, साथ में और भी बहुत कुछ। अब कटिहार बनेगा पूरी तरह डिजिटल एंड सिक्योर। सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, MG रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452 248601, a unit of KBC News। सभी प्रकार के केंट आरओ प्यूरिफायर के लिए संपर्क करें केंट आरओ के अधिकृत विक्रेता, सती सिक्योरिटी, MG रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452 242570, मोबाइल 9297979700। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस अब आपके शहर कटिहार में भी। केबीसी ब्रॉडबैंड, सबसे तेज और अनइंटरप्टेड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित केबीसी ब्रॉडबैंड। संपर्क करें सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, MG रोड, कटिहार या केबीसी न्यूज कार्यालय, बनियाटोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 242570 और 248601, मोबाइल 9297979700 और 9430029220। केबीसी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम मुद्दे की बात में आज हम हाजिर हैं एक नए विषय के साथ। स्वस्थ राजनीति और स्वस्थ लोकतंत्र, इसका निर्माण कैसे हो।
दोस्तों, वक्त के साथ राजनीति का इतना स्तर गिरता गया है कि लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में, आरोप प्रत्यारोप में अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं। जिन्हें देश के विकास के लिए बहुत कुछ करना है, उनका अधिकांश समय इन्हीं बातों में जाया हो जाता है। तो आज केबीसी न्यूज़ की ये कोशिश है कि हम हमारे देश में एक बार फिर स्वस्थ राजनीति और स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण कैसे करें। सबसे पहले आज हमारे इस कार्यक्रम में मेहमान हैं, मैं उनका परिचय करा दूं। हालांकि इनमें से कोई भी मेहमान परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी औपचारिकताएं हैं तो हम पूरी कर देते हैं। हमारे दाहिने हाथ में बैठे हैं जनाब तारिक अनवर, जो निवर्तमान सांसद भी हैं और महागठबंधन के उम्मीदवार। उनके बगल में बैठे हैं पीयूष अग्रवाल जी, जो कटिहार और पूर्णिया जिले के बीच जीडी गोयनका स्कूल, जो विश्व स्तरीय स्कूल है, उनके चेयरमैन हैं। उन्होंने कटिहार की शिक्षा जगत को एक नई दिशा देने की कोशिश की है और इनका राजनीतिक क्षेत्र में इनका विश्लेषण भी इनका काफ़ी अच्छा रहा है। हमारे बाएं हाथ में बैठे हैं दुलाल गोस्वामी जी, पूर्व मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में और आज एनडीए के प्रत्याशी हैं। उनके बगल में है डॉक्टर राम प्रकाश महतो। मैं इनके बारे में थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि आज इनकी उपस्थिति एज ए पॉलिटिकल लीडर नहीं है। आज इनको हमने आमंत्रित किया है एज ए राजनीतिक सुधारक। उनके उस संबंध में विचार रखेंगे, न कि ये किसी पार्टी को बिलोंग करेंगे। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर महतो इस बात को कंफर्म करें कि वो राजनीतिक सुधारक के रूप में ही आपकी भावना का हम ख्याल रखें। दोस्तों, पहले मैं सभी मेहमानों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम किसी को नीचा, किसी पर आरोप प्रत्यारोप करने का नहीं है। हम सब बातें करेंगे, एक सब लोग राजनीतिक अनुभव रखते हैं, तो हम लोग एक बातें करें कि हमारी सबकी कोशिश हो कि हम लोग देश में स्वस्थ राजनीति को कैसे लाएं और स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण कैसे हो। इस बीच में और कुछ बातें भी होगी। तो सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं, कटिहार संसदीय सीट में आगामी 18 अप्रैल को चुनाव होना है और इस दौरान आप सभी वोटर्स तैयार रहें अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। इस बीच में हम बातें करेंगे। मैं सबसे पहले जवाब लेना चाहूँगा जनाब तारिक अनवर से कि इस बार फिर आप कटिहार में एक प्रत्याशी के रूप में अपना दावा पेश कर रहे हैं। पिछली बार भी जनता ने आपको जीतकर संसद में भेजा। इस बार आप जनता के सामने क्या ऐसा नया लेकर जा रहे हैं आपका कि जनता आपको वोट क्यों दे? आप ये बताने जनता को समझाएं कि आखिर जनता दूसरों को छोड़कर आपको वोट क्यों दे। पहले तो ललित जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज इस महत्वपूर्ण विषय पर, मुद्दे की बात पर आपने हम सब लोगों को यहाँ आमंत्रित किया है और जो आपने उसका परिचय दिया कि राजनीति में जो लगातार गिरावट आ रही है उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, सामाजिक जीवन में किस तरह से उसको ठीक किया जाए, ये बहुत अच्छी शुरुआत है केबीसी न्यूज़ की। मैं समझता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम से लोगों में भी चेतना आएगी और जो राजनीतिक जीवन में है, राजनेता हैं, उनको भी अपने आप को सुधारने में मदद मिलेगी। आपने बिल्कुल सही बात कही। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं ये समझता हूँ कि ये जो चुनाव है, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव मुख्य रूप से राष्ट्रीय मुद्दे उसमें होते हैं। देश के सामने क्या समस्याएं हैं, देश के किसानों की क्या स्थिति है,
बेरोजगारी की समस्या है और इस तरह की अर्थव्यवस्था है, तमाम चीज़ों का ये मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा होगा और इसके साथ साथ स्थानीय मुद्दे भी होंगे। हम यही कह सकते हैं कि जहाँ तक स्थानीय मुद्दों का सवाल है, मेरी दो प्राथमिकता है। एक तो कटिहार की जो मुख्य समस्या है वो है बाढ़ और फिर कटाव, जिसके वजह से लोगों में पुनर्वास की एक बहुत बड़ी समस्या है। बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। उसको कैसे सुधारा जाए, ये हमारा आगे आने वाले दिनों में एक बड़ा मुद्दा होगा। साथ ही साथ कटिहार एक समय था कि औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी वो पहचान समाप्त हो गई है, प्रायः लगभग समाप्त हो गई है। एक ले देकर RBHM जूट मिल था, वो भी 2015 से बंद है। हमारी कोशिश होगी, हालांकि हम लोगों ने इस बीच में भी कोशिश की और सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल लेकर जो इसकी प्रभारी मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उनसे मिले भी, उन पर हर तरह से हम लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की कि RBHM जूट मिल बंद होने से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी होगी और पूरे उस हमारे कटिहार ज़िले पर उसके जो आर्थिक ढांचा है उस पर उसका असर पड़ेगा। लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हो सकते। हमारा आगे भी प्रयास जारी रहेगा कि RBHM जूट मिल को खोला जाए। उसके साथ साथ उद्योग ज़रूरी है। एक बड़े पैमाने पर जो पलायन होता है कटिहार से, बेरोज़गार नौजवानों का, मज़दूरों का, उसको रोकना भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। तारिक साहब, इसकी आगे का जवाब हम आपसे बाद में लेंगे। हम अगला सवाल हमारा महागठबंधन के प्रत्याशी जनाब दुलाल गोस्वामी से हैं। गोस्वामी जी, आप पूर्व में मंत्री रहे। महागठबंधन नहीं, एनडीए। हाँ, एनडीए के प्रत्याशी, क्षमा चाहूँगा, भाजपा एवं एनडीए के प्रत्याशी हैं दुलाल गोस्वामी जी। और पहले भी आप मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में, राजनीति का आपको लंबा अनुभव है। ग्रामीण क्षेत्र में आप काफ़ी लोकप्रिय भी हैं, शहर में आने का आपको पहली बार मौका मिला है। आपके लिए संसद का चुनाव पहला है ये, तो आप इस चुनाव को पहले तो किस नज़र से देखते हैं? दूसरा, आप कौन से मुद्दे को लेकर जनता के पास जा रहे हैं कि जनता आपको वोट दे? सबसे पहले तो मुद्दे की बात में आपने मुझे बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। और इसके साथ साथ आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि शायद पहली बार सीधी बातचीत में आपके चैनल के माध्यम से ज़िले के लोगों से मैं रूबरू हो रहा हूं। देखिए, ज़िंदगी में कोई हर चीज़ पहली बार आती है। हम तो 1995 में भी चुनाव लड़े थे विधानसभा का, वो भी पहली बार था। हम उसमें जीत दर्ज हुई। और इस बार एनडीए ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। ये बात सही है कि पूरे कटिहार जिला में जो लोकसभा सीट है या फिर कटिहार से बाहर, किन्हीं को इस बात का विश्वास भी नहीं होता। हम अगर खुद भी कहते तो विश्वास नहीं होता कि हमारे जैसे सामान्य गांव, ग्रामीण परिवेश का, किसान परिवार का, कि एनडीए का टिकट देगा, चुनाव लड़ेगा। तो आपका सवाल सही है कि गांव से शहर की ओर इन किए हैं, तो हम गांव शहर दोनों का हैं। और लोकसभा का चुनाव मेरे लिए हो सकता है कि स्वयं प्रत्याशी बन करके पहली बार लड़ रहे हैं, लेकिन जो है इससे पहले भी कई लोकसभा चुनाव का मैनेजमेंट हम कटिहार में किए हैं।
और इस बार जो एनडीए के तरफ से प्रत्याशी बने हैं, तो सबसे पहला मुद्दा मेरा है कि कटिहार में जो सामाजिक सौहार्द है, प्रेम है, भाईचारा है, समाज के सभी वर्गों को लेकर के चलने का जो संदेश हमारे आदरणीय नेता का है, नीतीश कुमार जी का है, हम उसको लेकर के चलते हैं। दूसरा चीज़ है कि कटिहार जिला का एक गौरवमय इतिहास रहा है। कटिहार का विकास हुआ है। कभी 2005 से पहले 1200 अनुमंडल हम सीधे नहीं जा सकते थे। अब लेकिन है कि मार्ग बन गया, ब्रिजें बनी है, जीवन आसान हुआ है, रेल छोड़ करके दूसरा कम्युनिकेशन नहीं था। इस कुछ चीज़ बढ़े हैं, लेकिन उसके अलावे भी बहुत कुछ करने का है। कटिहार औद्योगिक नगरी के रूप में कभी माना जाता था। माचिस फैक्ट्री से लेकर के जूट मिल तक, मोमबत्ती से लेकर के दिया सलाई तक चलता था। कई बड़ी बड़ी फ्लावर मिलें थी, वो सब बंद हो गए। तो वो बंद हो गए, लेकिन उसके परिवर्तन में कुछ और होना चाहिए था। तो उस दिशा में मेरा प्रयास रहेगा कि जो औद्योगिक नगरी के रूप में कटिहार था, चाहे बृहद उद्योग हो, छोटी उद्योग हो, उसको बढ़ावा दें। उस दिशा में जो उद्योग लगाने वाले इंटरेस्टेड हैं या फिर सरकारी, वो बने। ये इसके अलावे ये कृषि प्रधान जिला है। यहाँ केले की खेती, मक्के की खेती और जो खाद्यान्न है या सब्जी की खेती होती है। तो फूड प्रोसेसिंग का भी बहुत कुछ नहीं हो सका, या लोग प्रयास किए तो कर नहीं पाए। दूसरा है कि धान का भी प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। अब कुछ राइस मिल का चल रहा है, लेकिन राइस मिल या राइस मिलिंग का कोई बड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग उसको नहीं करा पाए कटिहार में, चाहे जो भी कारण रहा हो इससे पहले। तो वो एक प्रयास रहेगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि एग्रीकल्चर बेस जो इंडस्ट्री है उसको हम लोग बढ़ावा दें। और कटिहार का विकास का कुछ, जैसे कटिहार शहर है तो गौशाला में फ्लाईओवर बन जाना चाहिए था। कटिहार में जाम की स्थिति है, जो नगर की स्थिति है, तो कई तरफ से फ्लाईओवर जैसे अन्य शहरों में बने हैं। कम से कम कटिहार को गौशाला और फिर जो रेलवे वाली एक जो शहीद चौक के पास फ्लाईओवर, उसके अलावे भी एक चाहिए जो निजात मिले। बाईपास सड़क भी कटिहार को चाहिए। और कटिहार एक जगह एकत्रित हो गया है। कटिहार शहर में आवागमों का इतना दिक्कत है कि लोग कभी कभी पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। मार्केट भी सड़क पर आ गया। तो कटिहार का साइड में विकास होना चाहिए। इस दिशा में भी मेरा कोशिश रहेगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि कटिहार जो सनफ्लावर जूट मिल है जो प्राइवेट है, और RBMH जो गवर्नमेंट है, तो हिंदुस्तान में 3 जूट मिल काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल में 2, ये NGMC से किंग्सले और खदरा, और कटिहार में RBMH। और हमको लगता है कि तीनों जूट मिल बंद हो गए। और जब 2015 में हम मंत्री थे तो ललित बाबू, इस बात को हम बताना चाहते हैं कि ये तीनों जूट मिल को, उसमें संतोष गंगवार जी कपड़ा मंत्री थे, और लगभग 158 करोड़ दिलाया गया। तो उन्होंने उस समय कहा कि ये तीनों जूट मिल को तो हम फंड दे रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट अगर ठीक से नहीं चलाएगा तो आने वाला दिन में चलना मुश्किल होगा। और जितने लेबर के ट्रेड यूनियन हैं, चाहे इंटक हो, BMH हो, तो सारे लोगों को मैंने कहा कि मिल को बढ़िया से चलवाइए, नहीं तो बंद होगा तो दिक्कत होगी। क्योंकि जब आप खुली बात करते हैं तो कठिनाई हुई। और हम धन्यवाद देते हैं विद्वान प्रोफेसर राम प्रकाश महतो जी हैं, तारिक साहब हैं,
निखिल बाबू है, तारकिशोर जी है, राजवंशी सिंह जी है, सब लोगों ने कोशिश किया, लेकिन उसमें लोगों ने मुझे नहीं बुलाया, जबकि वहाँ फंड दिलाए, लेकिन मुझे क्यों छोड़ दिया गया? हो सकता है कि गांव देहात का आदमी है तो सोचा कि इनको नहीं बुलाया, हमसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ जुट मिल के मारे। हो सकता है कि हम दूसरे तरह से भी कोई प्रयास कर सकते, और जिस ट्रेड यूनियन का कहने पर जूट मिल को हम फंडिंग किए, कभी उन लोग से बात करिएगा तो इस पर आप बात करिएगा, लेकिन उन्होंने भी मुझे नहीं बुलाया। जब जूट मिल को फंडिंग हुआ तो उन्होंने कहा कि सायरन आपसे बजवाएंगे, आपको बुला करके उसको करवाएंगे। तो उस समय कितने लोगों ने विरोध किया और बोला कि आपका हम लोग नहीं बुला सकते, और हमको पटना से बुला, हमको सीधे बारसोई जाना पड़ा। तो देखिए, पॉलिटिकल लोग कभी कभी अच्छा तो काम करते हैं, लेकिन उसको अच्छा परिणाम नहीं मिलता है। ठीक है, ठीक है। इसका और जवाब हम आपसे आगे लेंगे। और आपने कोशिश की जूट मिल के लिए फंडिंग की, लेकिन जनता के हित में जब और नेता प्रयास कर रहे थे तो मेरा मानना है कि आप खुद आके बढ़ के भी उस कमेटी में शामिल हो सकते थे, लेकिन ठीक है, इससे आगे हम लोग बात करेंगे। अभी हम धीरे धीरे अपने मुद्दे पे आते हैं। जनता के पास जब चुनाव का वक्त आता तो नेता जाते हैं वोट दीजिए, वोट दीजिए, और जनता को वोट देना भी है, लेकिन जनता के सामने दो समस्याएं हैं। ये सवाल पहले मैं प्रोफेसर महतो जी से इसका जवाब लेना चाहूँगा कि जनता किस आधार पे वोट दे, वो प्रत्याशी को प्राथमिकता दे या पार्टी को। अगर कहीं में पार्टी अच्छी है तो लोगों को प्रत्याशी से क्वेश्चन मार्क लग जाता है, और प्रत्याशी अगर कमज़ोर है, अच्छा है, तो पार्टी पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। जनता की स्थिति बड़ी कसमकस की स्थिति होती है उनके पास। तो एज ए पॉलिटिकल एक्सपीरियंस डॉक्टर महतो बताएं कि जनता को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने ये जो प्रयोग किया है मुद्दे की बात, और संयोग है कि आपकी ये चर्चा ठीक चुनाव के समय आपका कुछ आधुनिक मशीन भी आया और आप ये कर पा रहे हैं, जिससे लोगों की जानकारी बढ़ेगी और लोगों का विचार भी आएगा, चाहे वो महागठबंधन के प्रत्याशी का हो या एनडीए के प्रत्याशी का हो। और पीयूष साहब भी अपना अनुभव शेयर करेंगे, जो इतना बड़ा स्कूल चला रहे हैं, न केवल पूर्णिया और कटिहार का, बल्कि हमको लगता है कि सीमांचल में जीडी गोयनका स्कूल एक अपना अलग मुकाम बना चुका है। आपने जिनको बुलाया उसके लिए आपको धन्यवाद। हम ज्यादा कुछ नहीं कह के इतना कहना चाहेंगे, ये बहुत सारे लोग राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त एक हास्य कवि है डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा। उनको जरूर लोगों ने सुना होगा, हम लोगों ने भी सुना है, और हम समझते हैं कि कटिहार की जो प्रबुद्ध जनता है उन्होंने भी सुना होगा। हालांकि है वो लब्ध प्रतिष्ठित हास्य कवि, लेकिन एक दफे उन्होंने बहुत मार्मिक ढंग से कवि सम्मेलन की शुरुआत में कहा कि हिंदुस्तान का, भारत का दुर्भाग्य है, यहाँ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और पार्टियों के उम्मीदवार को के आधार पर अपना वोट देती है। तो यहाँ जीतती है राजनीतिक पार्टी और हारती है राजनीतिक पार्टी। लेकिन जब भारत की प्रबुद्ध जनता और 99 करोड़, जो इस बार 2019 में 99 करोड़ देश का मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेगा, तो डॉक्टर शर्मा ने कहा कि जब मतदाता अच्छे, योग्य, सूझबूझ वाले, सर्वधर्म समभाव में आस्था रखने वाले लोग, मतलब समेकित रूप से उन्होंने कहा कि जब अच्छे और योग्य और कुशल प्रतिनिधि चुने जाएंगे, तब लोग जब ये आदत डालेंगे, तब पार्टियां भी अच्छे उम्मीदवार को, अपना अच्छे व्यक्ति को, अच्छे योग्य व्यक्ति को पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी।
जैसा कि आरोप लगता रहा है पहले कि कई पार्टियां गुंडा तत्वों को टिकट दे देती है, दबंग लोगों को टिकट दे देती है, तो प्रत्याशी प्राथमिकता तो किसी पार्टी का रहा नहीं। तो दुखद, ये तो ललित अग्रवाल जी, जब मैं संयोग से मैं विधायक था, चीफ व्हिप था, तो व्हिप्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें एक विषय था, चर्चा का विषय था डिसिप्लिन डेकोरम इन असेंबली एंड पार्लियामेंट। तो मैंने चीफ व्हिप की हैसियत से अपनी राय रखी थी, शिवराज पाटिल स्पीकर थे, कर्नाटक विधानसभा में हुआ था। तो मैंने कहा था कि देखिए पार्टी भी दोषी है, पार्टी देखती है किस जात की संख्या ज्यादा है, उसके पास धनबल कितना है, जनबल कितना है, बाहुबली कितना है, विनेबिलिटी है कि नहीं, और तब उस आधार पर जाति, धन, बल, उसके आधार पर आप देख देते हैं। तो हमने उस पर एक लाइन का कमेंट किया था कि पार्टी की आला कमान भी दोषी है, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। जब अच्छे लोग जीत के, प्रबुद्ध लोग, योग्य लोग, पढ़ा लिखा लोग नहीं जाएगा तो उस सदन में डिसिप्लिन और डेकोरम की कल्पना ही आप नहीं कर सकते हैं। न बहस होगी, न बहस में गुणवत्ता। हम यह बात आपकी मान के चलते हैं कि आपका अनुसार प्रत्याशी को ध्यान देना अच्छा प्रतिनिधि होगा, और जब अच्छा प्रतिनिधि जीतेगा तो पार्टी भी अच्छे उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी, वो पार्टी भी खुद अच्छी हो जाएगी। जी हाँ। सेम सवाल मेरा, आज हम आते हैं जीडी गोयनका के चेयरमैन पीयूष अग्रवाल की तरफ से की ओर। सेम सवाल मेरा आपसे भी है पीयूष साहब कि प्रत्याशी प्राथमिकता होना चाहिए या पार्टी? आप एक शिक्षाविद हैं और पूरे क्षेत्र में आपने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया और उच्च स्तरीय शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। आप अपने अनुभव से बताएं कि क्या होना चाहिए। मुद्दा एक ही होना चाहिए, विकास। विकास, हर मामले में विकास हो। जो भी प्रत्याशी, जो भी पार्टी चुनाव को एक रण क्षेत्र के रूप में लेके चलती है, जिस समय चुनाव आता है वो जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो कुछ ना कुछ उनका आधार होना चाहिए, कोई ना कोई मिशन होना चाहिए कि भाई मैं ये करूँगा, मैं जनता के लिए ये कर सकता हूँ। आप वोट मांगने के पहले डिसाइड कीजिए कि आप, अब वो जनता बेवकूफ़ नहीं रह गई है कि किसी प्रलोभन में जाएगी। आज के दिन लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, सोसाइटी एजुकेटेड हो रहा है। ये जरूरी नहीं है कि माँ बाप हमारे एजुकेटेड हो, बच्चे भी एजुकेटेड होते हैं तो अपने फैमिली को एजुकेट करते हैं। भाई किस प्रत्याशी ने, किस पार्टी ने हमारे शहर के विकास के लिए, हमारे संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए कौन सा काम किया है। आज एक लोकसभा चुनाव है, हमारे दोनों प्रत्याशी यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने ये कहा कि एक राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। ठीक है, राष्ट्र के लिए, राष्ट्रीय मुद्दों के लिए जो हमारे जनप्रतिनिधि ऊपर प्रधानमंत्री, अपने रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री जो बन के आते हैं वो जरूर सोचते हैं, पर लोकल प्रत्याशी को सबसे पहले अपना लोकल समस्याओं को समाधान करना होगा। हम घर में अगर सुखी नहीं हैं, हम बाहर में सुखी रह के क्या कर सकते हैं। आज कटिहार को तारिक अनवर साहब ने रेलवे का डिविजनल हेडक्वार्टर बना करके दिया। क्या एक ज़रूरत नहीं है यहाँ पे सूरत के लिए ट्रेन देने के लिए? काफ़ी सारे मजदूर यहाँ से सूरत जाते हैं, यहाँ से रोजगार के लिए जाते हैं, कितना परेशानी होता है, कितना उनको तकलीफ होता है, इस बात को समझना चाहिए। इस बात के लिए अगर एक छोटा सा प्रयास करते तो मुझे नहीं लगता कि ये सफल नहीं हो पाता। कटिहार शहर के अंदर में जल जमाव की इतनी बड़ी समस्याएं हैं, इस बात पे किसी का ध्यान नहीं गया। मैं बात करना चाहूँगा हमारे एनडीए प्रत्याशी से कि भाई आप ऐसा विधायक रहते हुए आपने ऐसा कोई काम किया है जिससे आप बड़ा विश्वास होकर हमारी जनता से मांग करें कि भाई लोकसभा में हमको जिताना चाहिए, मुझे वहां भेजना चाहिए। इस तरह का अगर कोई काम, वैसा काम, ठोस काम आपने किया जिससे कि आपकी चर्चा हमारे आपके विधानसभा क्षेत्र के अलावा पूरे बिहार में एक काम करने का मौका तो सबको मिल रहा है, पर ऐसा कोई काम करके सामने आए जिससे जनता को भरोसा हो कि ये जो प्रतिनिधि हम चयन कर रहे हैं ये वाकई हमारी समस्याओं को लेकर के ऊपर तक जाएगा और हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। आज के दिन शिक्षा पे कोई चर्चा नॉर्मली नहीं होती है, चाहे वो विधानसभा के कैंडिडेट हो या लोकसभा के कैंडिडेट हो। शहर की जो समस्याएं हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होता है कि ये मेरा काम नहीं है, ये विधायक का काम है, ये नगर निगम का काम है। अरे भाई, जो भी हमारी जनप्रतिनिधि है, कोई भी इनिशिएटिव लेगा तो कोई काम ऐसा नहीं कि वो काम नहीं होगा।
उस इनिशिएटिव को लेकर के उस काम को कराने के लिए बस एक जज्बा चाहिए, एक चाहिए कि हमें इस काम को कर देना है और करा देना है, चाहे भले उसके क्षेत्र अधिकार में हो या ना हो, वो सेकेंडरी बात होती है। पर जनता की समस्याओं के साथ रूबरू होकर के उनके रियल मुद्दों पर, आज महिला विकास की बातें हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे कटिहार में ऐसा महिला विकास में क्या हुआ है पिछले दिनों में जिससे कोई भी प्रत्याशी बड़े ठोस होकर कह सके कि भाई हमने महिलाओं के लिए ये काम किया है, हमने सुरक्षा के लिए, आज हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है उसमें हमने कहाँ क्या विकास किया कि लॉ एंड ऑर्डर में हमने कुछ चीज़ें ऐड की हैं। आज शहर में ट्रैफिक की समस्याएं इतनी ज़्यादा रहती हैं, इस बारे में छोटी छोटी चीज़ें हैं। गांव कस्बे हमारे हर साल बाढ़ आता है, हर साल कई सारे नेता आते हैं, कई सारे लोग आते हैं, कई तरह का प्रलोभन देते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पर अगला साल फिर से वही कहानी होती है। ये चेंज बहुत जल्दी हो सकता है, अगर थोड़ा सा प्रयास हो तो चेंज, परिवर्तन समय से पहले हो सकता है, पर उसके लिए लोग लगते नहीं। एक बार एक बस मुद्दे को उठा दिए, उसके बाद वो मुद्दा धरातल में चला जाता है, उसके पीछे लग करके उस मुद्दों का समाधान नहीं कराते हैं। मेरी किसी भी जनप्रतिनिधि जो जीत करके आते हैं उनसे यही आग्रह है कि आप कम से कम जनता की समस्या को ऊपर लेकर के जाएं, उसके प्रति लगे एक साथ में। ठीक है, अभी आपसे काफी सारी समस्याएं आती हैं, लोग काफी सारा उम्मीद रखते हैं। जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। मेरा सवाल आपसे था कि जनता प्रत्याशी को प्राथमिकता दे वोट देने में या पार्टी को? प्राथमिकता मेरे हिसाब से व्यक्तिगत आदमी को होना चाहिए, अनुभव को होना चाहिए, व्यक्तिगत आदमी को होना चाहिए, और जो आदमी सही में जनता के साथ चल रहा हो, उस विकास के मुद्दे पे आगे चल रहा हो, उस बात की प्राथमिकता होनी चाहिए। आपके जितनी बातें हैं हम आगे कार्यक्रम में दोनों प्रत्याशियों के सामने सवाल रखेंगे, उनसे जवाब लेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि केबीसी ने अभी सोशल मीडिया पे एक सर्वे किया था कि वोट किस आधार पे आप देना चाहते हैं, पार्टी के आधार पे या प्रत्याशी की गुणवत्ता के आधार पे। तो खुशी की बात है कि 67% लोगों ने प्रत्याशी की गुणवत्ता को प्राथमिकता दी थी, लेकिन 33% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पार्टी को प्राथमिकता दी। तो ये अपना अपना नज़रिया है, लेकिन केबीसी या हमारा मानना ये है कि अगर प्रत्याशी मजबूत होगा, सक्षम होगा, योग्य होगा, तो आपका क्षेत्र का विकास, आपकी क्षेत्र की समस्या को बखूबी समझेगा और सरकार से मांग कर आपके लिए आपकी समस्या का समाधान लेके आएगा। अगर आप सिर्फ पार्टी बेसिस पे जाएंगे, प्रत्याशी कमज़ोर होगा, तो कितने भी आप कर लीजिए वो समस्या को समझेगा नहीं और सरकार से मांग कर वो कभी ला नहीं सकता आपका समाधान। चलिए हम अगला एक टॉपिक लेते हैं कि पार्टी जब जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े वादे हम आपको यहाँ करते हैं, नेताओं से लेकर पार्टियों तक बड़े बड़े घोषणा पत्र जारी होते हैं, नेताओं के बड़े बड़े वादे होते हैं। जैसा कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? द डेमोक्रेसी इज टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोकतंत्र जनता की सरकार है, जनता के लिए सरकार है और जनता द्वारा निर्मित सरकार है। ये सरकार, ये लोकतंत्र जनता से शुरू होता है और जनता पर ही समाप्त होता है। लेकिन वास्तविकता आज हमारे देश की क्या है? इस लोकतंत्र का क्या हाल है? जो पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती है, शपथ पत्र कह लीजिए, संकल्प पत्र कह लीजिए, घोषणा पत्र कह लीजिए, नाम कुछ भी दे लीजिए, ये जनता से किया गया एक बड़ा वादा है। जनता उस पर विश्वास करती है और आंख बंद करके उस पर वोट डालती है इस उम्मीद के साथ कि ये इस बार ये सरकार हमारी जनता का, हमारी समस्या का समाधान करेगी। लेकिन होता क्या है? बड़े ही दुख की बात है कि अक्सर हमने देखा है कि आधे से अधिक बातें छूती तक नहीं है। पार्टियां क्या करती हैं? करती क्या है? उसके लिए एक नया उपाय, नया वादा और नई कहानी जनता के सामने फिर रख देती है। ये पूरी दुनिया जानते हैं कि हमारा देश अशिक्षित है, यहाँ की अधिकांश जनता अशिक्षित है। हमारे देश की जनता के अशिक्षा का फायदा ये पार्टियां उठाती है। कमजोर, अपेक्षाकृत कम समझदार लोगों की अशिक्षा का फायदा उठाना
कहाँ तक लाजमी है, ये आप नेता बेहतर बताएं। लेकिन हम आज दोनों प्रत्याशियों से पहले तारिक साहब से जवाब लेना चाहेंगे। जब आपकी पार्टी कोई वादा करती है तो आपकी पार्टी अगर 5 साल में उस वादे को पूरा नहीं करती है तो जनता को आपकी पार्टी के साथ क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे संविधान में जो 5 साल का समय रखा गया है कि चुनाव हर 5 साल के बाद होगा, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, जिला परिषद हो, पंचायत हो, उसके पीछे मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने संविधान की रचना की उनका उद्देश्य यही रहा होगा कि 5 साल के बाद लोग उसकी समीक्षा करें, उसका जायज़ा लें कि जो 5 साल पहले व्यक्तिगत रूप से हो या पार्टी के घोषणा पत्र के द्वारा अगर कोई वादा किया है तो उसको पूरा किया या नहीं किया, और अगर नहीं पूरा किया है तो उस पार्टी को या उस व्यक्ति को मैं समझता हूँ कि अधिकार नहीं है वोट मांगने का। और जाहिर है जनता को ये अवसर मिलता है 5 साल के बाद कि वो अपना फैसला ले। और जब तक के मैं समझता हूँ कि राजनीतिक चेतना आम लोगों में जब तक नहीं होगी, क्योंकि अभी तक के मैं ये समझता हूँ कि घोषणा पत्र को लोग गंभीरता से लेते ही नहीं हैं। आम तौर पर लोग ये सोचते हैं कि ये तो सिर्फ चुनावी वादा है और चुनाव के बाद न पार्टी इसमें गंभीरता से इसको लेगी और न लोग उसको भूल जाते हैं। तारिक साहब, ऐसा पार्टियां करती आई है तो लोगों का विश्वास घोषणा पत्र से उठ गया। बिल्कुल। है तो ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां तो हैं और जनता को या संविधान को। लेकिन इसमें हम इतना कहेंगे कि जो सामाजिक सुधारक हैं, जो लेखक हैं, जो पत्रकार हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, या जिनको कहा जाए कि जो एक प्रकार से समाज के अंदर चेतना पैदा करते हैं, सिविल सोसाइटी है, इनकी भी एक भूमिका है और उनको इस बात को मुद्दा बनाना चाहिए और पूरे देश के पैमाने पर इस बात को रखना चाहिए। अभी तो ऐसा है कि मीडिया भी जो है वो भी यूँ कहा जाए कि देश की राजनीति से पूरी तरह प्रभावित है। उसकी जो एक आज़ाद राय होनी चाहिए, स्वतंत्र राय होनी चाहिए, वो नहीं रह गया है। हम किसी मीडिया पे आरोप नहीं लगाते। नहीं, हम आरोप किसी मीडिया पर नाम नहीं ले रहे, हम तो जनरल बात कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ये शपथ पत्र जनता के साथ एक तरह का एग्रीमेंट है। बिल्कुल। इसमें एक तरफा साइन होता है पार्टियों के अलाका। मेरा ख्याल है कि इसमें चुनाव आयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये संविधान में चुनाव आयोग को ये देखना चाहिए कि जो घोषणा पत्र कोई भी पार्टी देती है तो उसका कितना % उसने इम्प्लीमेंट किया, कार्यान्वयन किया, ताकि फिर वो जनता को बताए चुनाव आयोग कि जिस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए, मान लीजिए 100 वादे किए, तो उसमें से 10%, 20% कितना उन्होंने पूरा किया और नहीं किया, तो इस बात को जनता के बीच में रखना चाहिए। मेरा ये कहना है कि एक तरह का जनता के साथ अनुबंध है ये। अगर कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति आम जीवन जीता है, किसी के साथ अनुबंध करता नहीं करता तो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई होती है। बिल्कुल। तो ये पार्टियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो हमको आप ये बताएं। इस मामले में मैं समझता हूँ कि राइट ऑफ रिकॉल जो एक समय में एक हुआ था कि जो लोग वादा पूरा न करें उनको वापस बुलाने की एक, ये तो प्रत्याशी के लिए है। हाँ, प्रत्याशी के लिए। लेकिन पार्टी लेवल पे इसी तरह से पार्टी के स्तर पर भी हो सकता है, उसको बनाया जाए। आप ये विश्वास दिलाते हैं अगर आप सत्ता में जाते हैं जी और आपकी सरकार बनती है, मैं नहीं जानता किसकी बनेगी, लेकिन ये फेनबर्ड अगर आपकी बनती है तो क्या आप लोकसभा में सांसद होने के नाते, देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस बात को उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। हमारा जो घोषणा पत्र है उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो, उसके लिए पार्टी के अंदर
आवाज़ उठाऊंगा और सदन में भी उठाऊंगा कि जो पार्टी ने वादा किया देश के लोगों के साथ, देश के किसानों से, नौजवानों से, मजदूरों से, जिससे भी किया हो, विकास से संबंधित जो वादे किए हैं उन तमाम वादों को पूरा करे। और इस बात के लिए मुझसे व्यक्तिगत रूप से जहाँ भी आवाज़ उठानी होगी हम पूरी ताकत से आवाज़ उठाएंगे। यही सवाल एनडीए के प्रत्याशी दुलाल जी से भी है। आप बताएं कि जो पार्टियां वादा करती है, कांग्रेस ने पिछले 70 साल से वादे किए, बीच बीच में जनसंघ भी आया, फिर अभी आपकी सरकार आई, सब लोगों ने वादे किए, वादे पूरे नहीं हुए, जनता तो ठगी की ठगी रह गई। जनता का क्या दोष? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इस पर मेरी नज़रिया कुछ अलग है कि राजनीतिक दल जब घोषणा पत्र जारी करती है तो वो उसका सरकार में आने के बाद आगे का काम करने का आईना है, और उसी के आलोक में सरकार में रहकर वो पार्टी उस काम को इम्प्लीमेंट करती जनहित में या लोकहित में। और बिहार में हम लोगों ने देखा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 2015 में घोषणा पत्र जारी किए कि मैं 7 निश्चय, और 7 निश्चय में हर घर बिजली पहुंचा दिए। हर घर बिजली, नल का जल काम चल रहा है। उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, बाकी सब चीज़ उसको भी किए, हर घर में बिजली उसको किए। तो हमारी पार्टी ने जो बिहार में घोषणा किया तो उसको तो कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि बहुत सारी बातें 5 वर्ष में आप पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वित्तीय मामला होगा, मैनेजमेंट है, आर्थिक है, प्रशासनिक है, टेक्निकल है। लेकिन फिर भी सर, अगर पॉलिटिकल पार्टी कोई घोषणा करती है, घोषणा पत्र में डालती है, तो उन विषयों के प्रति वो कितना गंभीर है, उस पर वो कितना काम कर रहे हैं, कितना आगे चल रहे हैं, या जनहित में हो या अन्य विकास का कार्य हो, तो वो अच्छी बात है। लेकिन इस पर दोनों तरह की बात है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी अपने घोषणा पत्र पर काम नहीं करती है तो क्या उसका मान्यता रद्द हो जाए? तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन उसमें एक अधिकार है, संविधान ने देश की जनता को एक राइट दिया है कि 5 साल के बाद चुनाव होगी, और अगर आप अपने एजेंडा पर काम नहीं किए चुनाव घोषणा पत्र पर, तो फिर आपको उसी तरह से वो जो है बैक कर सकती है, और दूसरे को सरकार का हस्तांतरण करने का तो अधिकार दिया हुआ है संविधान। इसका जवाब हम आपको अंत में देंगे। लेकिन एक सवाल, एक बात मेरी है, पीयूष जी ने एक बात पूछे हमसे कि जवाब अब दीजिएगा, अभी मौका मिलेगा, पहले हम उसका जवाब हमसे ले लीजिएगा। हम भी हाँ लेंगे। मेरा सवाल ये, मेरा आरोप ये नहीं कि नीतीश कुमार ने किया नहीं किया, ये निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने बहुत काम किया और बिहार की छवि बदली है। मेरा सवाल ये है कि जो पार्टियां नहीं, कौन करती है कौन नहीं करती है, ये भी आरोप नहीं है, ये जनता अच्छी तरह समझती है। लेकिन अगर कोई पार्टी नहीं करती है तो जनता तो बेचारी ठगी रह गई। उस जनता का क्या दोष है? तो पार्टियों के साथ क्या सलूक होना चाहिए? संविधान में ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट होना चाहिए, चुनाव आयोग को यह अधिकार होना चाहिए कि उस पार्टी को दोबारा उसके प्रत्याशी को चुनाव लड़ने का अधिकार न हो। जो और जहाँ तक 5 साल सफिशिएंट नहीं है, आपने कहा, जो भी प्रत्याशी नामांकन भरता है, मैदान में आता है, उसे पता है कि उसका टेन्योर 5 साल ही है। हर पार्टी को पता है, तो उसको घोषणा पत्र 5 साल के अंदर ही जारी करना चाहिए, न कि 25 और 50 साल की दृष्टि रख के। देखिए, बहुत काम ऐसे होते हैं, अब कोई बड़ा फैक्ट्री लगाइएगा, कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाए तो 5 साल में पूरा होने वाला है। तो ठीक है, तो लॉन्ग टर्म है, घोषणा पत्र में। लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि उस पर आप कर क्या रहे हैं, उसको किस दिशा में ले जा रहे हैं, क्या उसके लिए अपना कोई नियम बनाया, फंडिंग किया। अब ब्रिज बनाना है तो कोई बहुत बड़ी ब्रिज है तो वो 7 साल 8 साल का
लंबा टेन्योर है। चलिए 5 साल में तो आधा अधूरा तो बनेगा। हाँ, तो हम तो वही कह रहे हैं कि आप स्टार्ट किए कि नहीं, उस दिशा में काम किए कि नहीं, तो अगर कोई ये होना चाहिए। कोई अगर पार्टी लेकिन आप जिस बात को कह रहे हैं ना, तो उसी पर तो मैंने कहा कि अगर पॉलिटिकल पार्टी जनता को जो वो घोषणा पत्र करती है जनता के हित में, या आपका कहना कि सब्ज बाग दिखा रही है, उस पर काम कर रही है कि नहीं, तो 5 साल के बाद तो उसको अधिकार है। ठीक है। एक दूसरा चीज है कि ये बहुत लंबी बहस की बात है, ये संवैधानिक बात है, और फिर इस पर कुछ करने के लिए संवैधानिक संशोधन की बात आ जाएगी तो यही कि भाई चुनाव आयोग को ये पावर दिया जाए, कि लोक आयुक्त को दिया जाए, या फिर जो है लोकसभा में इसको इस ढंग से रखा जाए। ये लंबी बहस की बात है। हम मानते हैं इस बात को, लेकिन क्या हम यही जानना चाहते हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अगर पार्टियां घोषणा पत्र को पूरा नहीं करती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए? अगर आप सहमत हैं तो अगर आप जीत के जाते हैं और आपकी सरकार बनती है तो क्या आप संसद में इसकी बात उठाएंगे? देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां जो विषय जनहित की अपने मैनिफेस्टो में रखते हैं तो वो जनता के हित में रखते हैं। जो पार्टी सत्ता में आई तो करेगी, जो सत्ता में नहीं आई तो उसका मैनिफेस्टो तो धरा का धरा रह जाए, उस पर कुछ नहीं हुआ। जो सत्ता में है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी सरकार बनती है, आप संसद में जीत के जाते हैं और आपने जो वादे किए वो वादे उस टेन्योर में पूरे नहीं होते हैं, तो क्या आप हमको विश्वास दिलाते हैं यहाँ केबीसी न्यूज़ के माध्यम से कटिहार की जनता को कि इस मुद्दे को आप संसद में उठाएंगे कि जो मैनिफेस्टो है उसका पूरा होना चाहिए, जो मैनिफेस्टो पूरा नहीं होगा तो उसके विरुद्ध एक कानून बनना चाहिए, बिना मैनिफेस्टो करने नहीं, हमारी सरकार तो अपना मैनिफेस्टो पर पूरा काम कर रही है। मैंने और हम दुलाल जी, मैं आपको यहाँ रुकता हूँ। और दूसरा चीज जो आप बोल रहे हैं कि अगर वो नहीं करे तो कानून बनना चाहिए, तो इसके लिए तो संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। संशोधन करें तो उस पर बात होगी, नहीं करेंगे तब ना। हाँ, तो आप मुद्दा उठाएंगे या नहीं? हमको पूरा विश्वास है कि जो मैनिफेस्टो है उस पर हम लोग काम करेंगे। अगर नहीं हुआ तो मुद्दा, अगर का बातें नहीं है, काम करना है तो अगर है क्या? मैं भाजपा या कांग्रेस को व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ। नहीं, हम कांग्रेस क्या करेगी हम नहीं जानते, लेकिन हम एनडीए का प्रत्याशी है और हम लोग का जो मैनिफेस्टो उस पर काम होगा, और हम लोग जनता को विश्वास दिलाते हैं कि उस पर हम लोग काम करेंगे। चलिए, इस बात पे हम आएंगे आपके बाद में। तब हमारे आप बताएं, डॉक्टर महतो जी से मैं जवाब लेना चाहूँगा कि क्या पार्टियां को जो घोषणा पत्र जारी होता है उस पर 100% अमल नहीं हो तो जनता को या कोई संवैधानिक के अलावा कानूनी अधिकार होना चाहिए या नहीं? सबसे पहले तो हम ललित जी आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि जिस गंभीर मुद्दे की चर्चा आप यहाँ कर रहे हैं कि पार्टियां चुनाव में आती है और पूरा लोक लुभावन मुद्दों के साथ घोषणा पर घोषणा और शपथ पत्र हो कि संकल्प पत्र हो कि प्रतिबद्धता पत्र हो, सब पार्टी का नाम भले अलग। अगर यही प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर हो तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से चुनाव इससे प्रभावी होगा। हम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी आप कहना चाहेंगे कि जो प्रश्न आपने छेड़ा है, जिस मुद्दे की बात में आपने उठाया है, निश्चित रूप से 135 करोड़ आबादी है, 90 करोड़ मतदाता है जो 2019 में 2014 के सभी पार्टी के घोषणा पत्र की समीक्षा होनी चाहिए कि आपने क्या क्या वादे किए थे, आपने क्या क्या कहा था, वो जमीन पर उतरा, ये घोषणा जुमला साबित हुआ। एक सेकेंड सर, मैं रोकना चाहूंगा। ये घोषणा पत्र सिर्फ लोकसभा चुनाव में नहीं लागू होता, विधानसभा चुनाव में लागू होता है। इस सिर्फ 2014 की बातें नहीं होगी, बातें 2016 की भी होगी, 2011 भी। आप हमको, मेरा दावा है कि आपने जिस विद्वतापूर्ण ढंग से अपने केबीसी के महानिदेशक के पद का निर्वहन किया है, अगर इसी तरह से देश के पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर अगर मीडिया के प्रबंधक और मीडिया का जो मीडिया हाउस के जो लोग हैं अगर इस सवाल को उठाए तो कम से कम जो अंधभक्त हैं, जो
अंध समर्थक है, जो आंख मूंद के समर्थन देता है वो नहीं, लेकिन जो थोड़ा भी रैशनल है, थोड़ा भी विवेकशील है, यदि घोषणा पत्र को सामने रखे। अंधभक्त कहाँ से आ गया? नहीं, ये मतलब ऐसा नहीं, मतलब आंख मूंद के नहीं, घोषणा पत्र पर यदि उसका थ्रेडवेयर विश्लेषण हो, बिंदुवार उसकी समीक्षा हो, तो दूध का दूध, पानी का पानी देश की जनता, प्रबुद्ध जनता कर देगी, देश का प्रबुद्ध मतदाता कर देगा, मेरा विश्वास है। निश्चित रूप से अगर ये मुद्दे की बात विषय पर केबीसी का यह विषय राष्ट्रीय चैनल पर आ जाए तो देश निश्चित रूप से कल का आने वाला कल परिवर्तित होगा और लोग डरेंगे। मामूली एक उम्मीदवार, आज हम कहीं पढ़ रहे थे, यदि आप गलत सूचना देते हैं, आप पर मुकदमा है, आपने मुकदमे का जिक्र नहीं किया, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है और आपकी उम्र क्या है, आपके पास संपत्ति कितनी है, आपके सगे संबंधी के पास कितनी संपत्ति है, यदि आप इसका स्पष्ट विवरण नहीं देते हैं तो आप पर आपराधिक मुकदमा होगा। तो महानिदेशक केबीसी ने यही प्रश्न किया है कि यदि कोई दल अपने शपथ पत्र, संकल्प पत्र, प्रतिबद्धता पत्र और घोषणा पत्र और मैनिफेस्टो के अनुरूप जनता के सामने, जनता को अधिकार है कि हर 5 साल में पार्टी के घोषणा पत्र और मैनिफेस्टो को देखे कि क्या क्या घोषणा हुई थी और क्या क्या जमीन पर उतरा। निश्चित रूप से देश बदल जाएगा और सरकार, पार्टी भी डरेगी कि भाई अब केवल बयानबाजी से वही घोषणा करें जो हम दे सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका ये विषय सामयिक है, प्रासंगिक है, व्यवहारिक है और ज्ञानवर्धक भी है और लोगों का एक मार्ग पथ प्रदर्शक साबित होगा, मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी यही मुद्दे को लेके जीडी गोयनका के डायरेक्टर चेयरमैन पीयूष अग्रवाल से भी जानना चाहूँगा, आपका क्या मत है कि जो मैनिफेस्टो नहीं पूरा करता है जो पार्टी, वो वादा खिलाफी है या नहीं? बिल्कुल, मैनिफेस्टो को हर हाल में इम्प्लीमेंटेशन करना उस पार्टी की जवाबदेही हो जाती है। आज अपने वाजिब में यह मुद्दे को छेड़ा है केबीसी के माध्यम से और मैं महतो जी के बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर इस चीज़ को राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय चैनल अगर प्रसारित करें और इस बात को थोड़ा सा पार्टियों के साथ खंगालें कि भाई आपने पिछले चुनाव में क्या क्या वादे किए और अब आपने क्या पूरे किए हैं, क्या नहीं किए हैं। ये खोखले वादे, ये खोखले प्रवचन, ये खोखले दावे कि भाई आज हर चीज़ का मतदाता की जिस सब्जेक्ट पे, जिस चीज़ पे जो डिमांड होती है उसके प्रत्याशी, उसके पार्टी हर चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस नॉर्मली दे देते हैं। हाँ, मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा। पर ये वाजिब में इसकी समीक्षा एक होनी चाहिए और उसके ऊपर कड़ा कानून बनना चाहिए। भाई आप प्रलोभन दे करके जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। आप उतना ही कहिए जितना आप कर पाएंगे, जितना आपके 5 साल के टर्म के दौरान काम आपका पूरा हो पाएगा। आप उस बात को उतना ही हमें वचन दीजिए, उतनी ही बात आप हमारे सामने रखिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं ललित जी को, इस बात को आपने छेड़ा है और इस बात को गंभीरतापूर्वक सारे राजनीतिक दल को, हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है हमारा मीडिया समाज, इस सब को इस बात को गंभीरतापूर्वक ले करके इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन कर दे तो वाकई जनता का जो अगला टर्म आने वाला है या नेता का जो अगला टर्म आने वाला है वो जो पिछले 50 साल में काम नहीं हुआ वो 5 साल में जरूर काम हो जाएगा। मैं इस बात पे बताना चाहता हूँ जनता को भी, आप लोगों को भी, आज क्या नारा है देश के, दोनों पार्टियां क्या नारा देती है। कांग्रेस का नारा है चौकीदार चोर है, 15 लाख कहाँ गए। भाजपा का नारा है कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। ऐसी स्थिति क्यों है? देश हम विकास देंगे, हम अच्छा करेंगे, आपको आगे लेके जाएंगे, ये बातें कहाँ हैं? सब बातें तो आज इन आरोपों के बीच में गौन हो गई है। अगर यही घोषणा पत्र को पूरा किया गया होता पार्टियों द्वारा तो ये आरोप प्रत्यारोप लगते ही नहीं। हमारी पार्टियां इन आरोपों और प्रत्यारोपों में उलझ गई है। इसी का अंजाम ये है कि आज हमारा देश चीन के सामने हमेशा नतमस्तक होता। बातें बड़ी कर लें लेकिन हम जब समय की स्थिति आती है तो हम किसी न किसी बहाने किनारे वाली गली से निकल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारा देश, हमारी पार्टियां जिसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है और उन पार्टियों के नेता जो ग्राउंड की स्थिति समझते हैं, ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, वो दृढ़ संकल्पित कर ले कि हमें अपने क्षेत्र के लिए, हमें अपने देश के लिए काम करना है, तो मेरा दावा है
कि उन्होंने वोट के समय उन्हें दर दर दरवाजे जाने की आवश्यकता नहीं होगी, जनता खुद उनको बुलाती है। मैं इसी बात के साथ लेता हूं एक छोटा सा ब्रेक। अब ब्रेक के बाद हम फिर नए सवाल और नए बातों मुद्दों को लेकर फिर आएंगे आपके सामने। आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जीडी गोयनका स्कूल, विश्व स्तरीय शिक्षा का बिहार में एकमात्र स्कूल, सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, एलईडी टीवी और केंट आरओ के अधिकृत विक्रेता, केबीसी ब्रॉडबैंड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस। Parents sending their child outside Bihar because of no good schools can now send their children in GD Goenka Public School in Ranipatra, Purnia, one of the best schools in the country, and help them become an all-rounder with their world-class facilities. The faculty at GD Goenka has been specially trained and called from outside to ensure high-quality education and to include practical studies. Apart from classroom studies, the students at GD Goenka put their learning in practical with the help of well-equipped labs. Beside academics, GD Goenka offers to a huge variety of extracurricular activities. Your child will have an opportunity to get well trained in horse riding, archery, shooting, squash, lawn tennis, billiards and basketball. Not only this, your child will even get an opportunity to enhance himself and herself in the field of music and dance. The students will get professionally trained to play various instruments like guitar, harmonium, flute. They will even learn various forms of dance like Bharatnatyam, Kathak, Jazz and Salsa. Your child will even have an access to a wide variety of books at GD Goenka's vast library where knowledge meets the student. The school provides a splendid facility of hostels for those who wish to stay in the campus, giving the environment of home away from home, is rich in nutrients, and there is a regular supervision over the quality of food, keeping in mind the health of residential and non-residential students. During summers, your child will not complain about the heat anymore, as GD Goenka is fully air-conditioned, so are its buses. At GD Goenka, the enthusiastic environment and the constant guidance from the teacher will set your child's future to a journey of success. As GD Goenka follows the ideology of no child left behind. To see your child prosper, please contact GD Goenka Public School, Matia Chowk, Ranipatra, Katia Purnia Road, Purnia. The toll-free number is 1800 3131 2222. The phone numbers are 76728 22222 or 23 or 24. सती सिक्योरिटी सिस्टम्स डिजिटल कटिहार अभियान की शानदार शुरुआत। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विसेज, डिजिटल एलईडी टीवी, सीसीटीवी कैमरे, स्पाई कैमरे, मनी काउंटिंग मशीन, लैपटॉप एंड कंप्यूटर एसेसरी, एयर कंडीशनर, डिजिटल एलईडी लाइट्स, वीडियो डोर फोन्स, फायर अलर्ट्स, साथ में और भी बहुत कुछ। अब कटिहार बनेगा पूरी तरह डिजिटल एंड सिक्योर। सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, MG रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452 248601, a unit of KBC News। सभी प्रकार के केंट आरओ प्यूरिफायर के लिए संपर्क करें केंट आरओ के अधिकृत विक्रेता, सती सिक्योरिटी, MG रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452 242570, मोबाइल 9297979700। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस अब आपके शहर कटिहार में भी। केबीसी ब्रॉडबैंड, सबसे तेज और अनइंटरप्टेड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित केबीसी ब्रॉडबैंड। संपर्क करें सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, MG रोड, कटिहार या केबीसी न्यूज कार्यालय, बनियाटोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 242570 और 248601, मोबाइल 9297979700 और 9430029220।
नमस्कार दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं मुद्दे की बात का लेकर कार्यक्रम। आज का विषय है, जैसे आपको पता है, स्वस्थ राजनीति और स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण कैसे हो। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले मैं दुलाल गोस्वामी एनडीए के जो प्रत्याशी उनके पास आता हूँ कि हमारे जो पीयूष अग्रवाल जी ने जो बात उठाई, मंत्रिकाल के दौरान आपने ऐसा क्या किया और आगे आप क्या करने वाले हैं, तो इसका जवाब हम आपसे लेना चाहेंगे। नहीं, उसकी तो जानकारी देंगे तो लंबा समय लगेगा लेकिन हम संक्षिप्त में बताना चाहते हैं कि अगर जो बलरामपुर विधानसभा से विधायक थे तो उस क्षेत्र के बारे में अगर कहेंगे, हमारे तारिक साहब यहाँ बैठे हुए हैं तो वो भी घूमते होंगे, तो रोड ही रोड है, कुछ तो किए हैं लेकिन मैक्सिमम रोड मेरा बनाया हुआ है। शायद उस विधानसभा का कुछ ही 1-2 गांव होगा जिसमें रोड नहीं होगा, तो सब में रोड चला गया। कुछ पहले बना, मैक्सिमम। दूसरा चीज़ है कि मैंने एक ITI कॉलेज बनाया हुआ, बारसोई में सब ट्रेजरी का स्थापना कराया। अब मंत्री का टेन्योर आपका कितना दिन का रहा था? मंत्री का तो 13 महीने का रहा, 2 बार 6 महीना 7 महीना, लेकिन मंत्री मैंने विधायक से सब शुरू किए। अच्छा जी, हाँ। 2010 में निर्दलीय जीते तो हम तय कर लिए कि इंडिपेंडेंट जीते हैं तो कुछ करना है। अच्छा, लाइबिलिटीज किसी पार्टी का था नहीं, तो कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या जहाँ भी है या पदाधिकारियों से बैठ करके तो सड़क का कम्युनिकेशन मजबूत किए और हम 4 उच्च स्तरीय ब्रिज बनाए महानंदा नदी में जो बारसोई में है, तो 3 बड़ी ब्रिज उसमें, सुधानी नदी में 2 और छोटी छोटी पुलिया। तो एक कम्युनिकेशन जो बिघोर की और बारसोई से कम्युनिकेशन बनता वो हुआ। आपको दासग्राम, शिकारपुर इस साइड से आबादपुर का कम्युनिकेशन किए। फिर बनभुई में ब्रिज बना, उससे करणपुर इस साइड का कम्युनिकेशन हुआ। तेलता और इसके बीच का एक कम्युनिकेशन मैसाल ब्रिज, फिर एक थुबोर ब्रिज बना। तो ब्रिज बनी, सड़कें बनी और उस समय लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के सारा चीज़ चुस्त दुरुस्त था, लोग खुश भी थे। तो अब बोलिए कि अब हार कैसे गए? तो पर राजनीति में तो होता है कि अच्छा काम करने के बाद भी आदमी को हारना पड़ता है, जो काम नहीं करते हैं उनको भी लोग जिता देते हैं। होता है। तो ये तो राजनीति में होते रहता है, क्योंकि हम लोग के यहाँ का चुनाव का सोच अलग है, इसीलिए तो उस सोच को इस बार बदलना है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कई पुल बनाए अपने विधायकी में, जब आप सांसद अगर बनते हैं तो कटिहार शहर को 5 पुलों की सख्त आवश्यकता है जिले को। पहला जो गौशाला आरोपी की आपने बात कही है, दूसरा मंगलबेड़ा चूड़ी पट्टी से उधर जाने वाला एक ब्रिज चाहिए जाके ट्रैफिक कम हो। एक ठो सदर अस्पताल के सामने छोटा ब्रिज है, उससे बड़ा ब्रिज चाहिए, वहाँ जा सके। और एक ठो गौशाला के पास भी आरोपी चाहिए। दूसरा 2 ब्रिज की बात मैं कर रहा हूँ, जो महानंदा पे ब्रिज बना हुआ पिछले 25 सालों से अधूरा पड़ा है। और एक तो साहेबगंज पे 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री उद्घाटन करके गए, लेकिन आज तक ईंटा भी नहीं जोड़ा। आप अगर जीत के जाते हैं तो ये 5 पुलों का निर्माण कितने दिन में आप करा देंगे? नहीं, पहला तो हम बता दें, आप लावा ब्रिज के बारे में संभव तो कह रहे हैं जी। तो लावा ब्रिज में कम्युनिकेशन चालू हो गया, अभी भी रोड कनेक्टिंग नहीं कनेक्टिंग हो गया उसका। चलिए ठीक हो गया, दोनों साइड क्योंकि बंगाल पर्सन ने जमीन दे दिया और जो बांध है जो हरिश्चंद्रपुर जाने वाले रूट उसमें मेरा ही पड़ गया था, ब्रिज तो बन गया था पहले ही। हाँ, तो दोनों साइड की आपके हिसाब से रोड कनेक्टिंग चालू हो गई? हाँ, नहीं इधर तो चालू था ही, कटिहार साइड, लेकिन बंगाल साइड भी कनेक्ट हो गया, यानी आराम से जा सकते हैं। आराम से जा सकते हैं, लेकिन रोड उतनी अच्छी नहीं है बंगाल साइड में, तो उसके लिए तो एक अलग प्रयास करना होगा बंगाल के साथ मिलकर। तो यही मैं जानना चाहता हूँ, बाकी 4 ब्रिज के बारे में मैंने आपको बताया, फ्लाईओवर के बारे में। हाँ, एक साहेबगंज ब्रिज है जो साहेबगंज में भूमि अधिग्रहण पहले क्या था कि जो सरकारी जमीन में, जो बिहार सरकार की अपनी जमीन है, उसमें ब्रिज का काम शुरू कर दिए, अब बाद में भूमि अधिग्रहण करना। लेकिन अब ये पॉलिसी हो गई कि पहले आप भूमि अधिग्रहण करिए, क्योंकि उसमें विवाद हो जाती है। कभी कभी पब्लिक जो है, किसान जमीन देते नहीं है, तो भूमि अधिग्रहण का प्रक्रिया अंतिम प्रोसेस में है, जो साहिबगंज मनिहारी का है।
हमको लगता है वो थोड़ा सा ज़मीन का होना बाकी, जैसे वो हो जाएगा हमको लगता है उसमें केवल भूमि अधिग्रहण में प्रयास करना है, बाकी दूसरा प्रयास कुछ नहीं है। लेकिन कटिहार में 2-3 फ्लाईओवर है, इसका तो आवश्यकता है। लेकिन एक है कि आपका जो कुरुम हाट देख रहे हैं कदवा प्रखंड में, तो महानंदा नदी में बेनी जलालपुर इसके पास जो सुदानी और दालकोला एरिया को जोड़े, वो 22 पंचायत है महानंदा के बांध के भीतर। तो वहाँ महानंदा में एक ब्रिज चाहिए। एक ब्रिज रोहिया खोपड़ा है जो लाभा के बगल में ही है। लाभा ब्रिज बना, लेकिन उसको बंगाल से कनेक्टिविटी है, लेकिन आजमनगर को सीधे कटिहार से कनेक्टिविटी नहीं है। तो रोहिया खोपड़ा हो या उसके अगल बगल में साइड में महानंदा नदी में एक ब्रिज वहाँ भी चाहिए। तो आप इन पुलों का निर्माण जल्द से जल्द कराने का प्रयास करेंगे? नहीं, मेरा तो शुरू से इस पर नजर रहा है। तो आश्वस्त करते हैं जनता को? नहीं, हम इसके लिए पूरा कोशिश करेंगे और कोशिश करने वाला आदमी कामयाब हो जाता है। यही सवाल हम तारिक साहब से किसका जवाब लेना चाहेंगे। इसके पहले मैं जवाब लूँ, तारिक साहब आप पे एक गंभीर आरोप है। आपके बारे में जनता कहती है कि आप हवा की तरह आते हैं कटिहार में, वो आंधी की तरह चले जाते हैं। लोगों को मिलना होता तो आपके आने की खबर अखबारों में छपती है, अखबारों से पता चलता है कि तारिक साहब कटिहार आए, फलाना जगह दौरा किया, अखबारों से लोगों को पता चलता है कि अब दिल्ली भी चले गए। जनता कैसे आपसे मुलाकात करे, मुसीबत के समय कैसे आपसे संपर्क करे? देखिए, जब आदमी कोई भी मेरी जगह सांसद अगर होगा तो सांसद की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि आप लोकसभा में भेजते हैं, उसका सबसे जो सर्वप्रथम उसकी जिम्मेदारी है कि जो देश के अंदर कानून बनता है, जो संविधान में अगर किसी तरह का संशोधन होता है तो उसमें सांसद की बहुत बड़ी भूमिका होती है। फिर वहाँ स्टैंडिंग कमेटी होती है, उस स्टैंडिंग कमेटी की लगातार बैठक होती है। किसी विषय पर सरकार अगर कोई निर्णय लेना होता है या कोई भी बिल आता है तो उसको पहले स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाता है, ताकि स्टैंडिंग कमेटी उसकी पूरी छानबीन करके उसकी रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखे और तब वहाँ से बिल पास हो। ये सब एक प्रक्रिया है। तो जो सांसद जो भी होता है उसको उन तमाम चीज़ों में भाग लेना पड़ता है, हिस्सेदारी करनी पड़ती है। जहाँ तक मेरा सवाल है कटिहार में आने और जाने का, तो मैं हर शनिचर इतवार जो छुट्टी का दिन होता है, जिसमें हमारी कोई मीटिंग नहीं होती है, लोकसभा नहीं होता है, सदन बंद होता है या कोई छुट्टी होती है, तो हम उसमें कटिहार आते हैं। और जो अखबारों की बात आपने की, अखबार में जानबूझ के मैं देता हूँ खबर, ताकि पूरे कटिहार के लोगों को जानकारी हो कि इन दिनों हम कटिहार में हैं और कहाँ कहाँ जाएंगे उसकी भी हम सूचना देते हैं, ताकि लोग उस जगह के, उस ब्लॉक के या उस विधानसभा क्षेत्र के लोग हमसे आसानी से मिल सकें। तो वो मैं जानबूझ कर देता हूँ, उसके पीछे मेरा यही उद्देश्य होता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जितना भी मैं अधिक से अधिक आने वाले समय में मेरा प्रयास यही रहेगा कि कटिहार में ज़्यादा से ज़्यादा समय दूं। और वैसे भी जो कटिहार की बहुत बड़ी आबादी दिल्ली में रहती है, उन जो हमारे मज़दूर हैं, छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं, उनकी समस्या है, उनको भी हम लोग देखते हैं वहाँ। यहाँ पटने में कुछ उनकी समस्या होती है, उसको भी देखते हैं। तो जहाँ जहाँ इस तरह का कोई जन समस्या हमारे पास आती है तो उसका समाधान करने का हम कोशिश करते हैं। आरोप ये नहीं कि आप समस्या नहीं देखते हैं, आरोप ये है कि जनता आपसे मिले कैसे, समस्या पहुंचाए कैसे। हम तो, मेरा दरबार खुला रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। जनता दरबार है हमारा, कभी भी कोई आ सकता है। कभी मैं आप कटिहार में उपलब्ध होंगे तो नहीं, हमने बताया ना कि कोई भी जितने भी शनिचर इतवार होता है उसमें हम ज़रूर कटिहार आते हैं, क्योंकि
छुट्टी उसी में मिलती है, नहीं तो फिर ये आप आश्वस्त करते हैं कि हर सैटरडे संडे कोई भी चाहे तो आपसे मिल हाँ, मैं ऐसे मतलब मेरी कोशिश तो यही रहती है, जब अनलेस कोई ऐसी बात हो जाए, कोई पारिवारिक काम आ जाए, कुछ और ऐसी बात हो जाए, तभी हम नहीं आते हैं। वरना आप देख ले मेरा उठाकर कैलेंडर, मेरे पूरे साल भर का एक निश्चित आप जनता को बता दें कि शनिवार रविवार को अक्सर कोशिश आपकी रहेगी कि आप कटिहार में उपलब्ध बिल्कुल, मैं ये तो जनता भी निश्चित रहेगी कि आप मैं ये आश्वस्त करता हूँ और ये मेरा प्रयास हमेशा रहा है। मैं बल्कि मेरे बारे में तो जो दूसरे सांसद हैं वो हमको कहते हैं कि आप जितना क्षेत्र का दौरा करते हैं उसका असर हम लोगों पर पड़ता है। सब लोग आपका उदाहरण देते हैं कि तारिक अनवर इतना क्षेत्र का दौरा क्यों करते हैं। तो ये हम बल्कि दूसरी जगह हम बदनाम हैं और लोगों में कि हम सबसे ज़्यादा क्षेत्र का भ्रमण हम करते हैं। लगातार हमारा विजिट होता है, लगातार यहाँ के लोगों से संपर्क रहता है और कोशिश हमारी रहती है कि जितना अधिक से अधिक लोगों को हम सुविधा दे सकें, उनकी समस्या का समाधान कर सकें। और मेरा अपना एक काम करने का तरीका है, मैं किसी तरह का भेदभाव नहीं करता हूँ। मेरा ये उसूल है कि कटिहार का कोई भी व्यक्ति मेरे पास आ सकता है, उसका सिर्फ इतना कह देना काफ़ी है कि वो कटिहार का बाशिंदा है। चलिए, हम आश्वस्त हैं आपकी बातों से कि आप हर शनि रविवार कम से कम मिलेंगे। इसके अलावा भी आपको मौका मिलेगा तो आप कटिहार की जनता को समय देंगे अगर आप इसके जाते हैं तो। मेरा एक अगला मुद्दा है जिले का, जो बहुत अहम है। विस्थापितों की संख्या जिले में बहुत है और एक लंबी समस्या, वर्षों से सब समय इसका समाधान, तारिक साहब आप तो सांसद रहे हैं, कई बार सांसद रहे हैं, इसका कोई समुचित समाधान आज तक क्यों नहीं हो पाया? उन गरीबों के घर में जाके देखिए, बच्चे को रोते देखिए, जमीन पे लेटे बच्चे को, बीमार बच्चे को देखिए, उनके असहाय माँ बाप को देखिए तो आंखें रो पड़ती हैं। ऐसा क्या था कि इन विस्थापित के परिवारों के लिए आज तक हम कुछ नहीं कर पाए? बिल्कुल, आज ही हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी आए थे, तो मैंने अपने भाषण में पहला मुद्दा और जो पहली कटिहार की समस्या है, पब्लिक मंच से मैंने यही बात कही कि मुख्य जो मुद्दा है या मुख्य समस्या हमारे कटिहार ज़िले की है वो बाढ़ है और कटाव है, और उस कटाव से जो लोग प्रभावित हैं उनका पुनर्वास है। तो ये समस्या हम लोग लगातार उठाते रहे हैं, लेकिन मुझे कहते हुए अफसोस लगता है कि बिहार सरकार इस मामले में उदासीन है। उसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हम लोग यहाँ से लेकर पटने तक, मुख्यमंत्री तक के दरबार तक, सब जगह इस मुद्दे को हम लोगों ने पहुँचाया है, लिखित रूप में पहुँचाया है, लेकिन उस दिशा में सरकार की तरफ से जो एक प्रकार से रिस्पांस मिलना चाहिए वो नहीं मिला। तारिक साहब को मैं बताना चाहूँगा, और इस मुद्दे को मैंने पार्लियामेंट में भी, सदन में भी उठाया है, और सदन में आप कहेंगे तो मैं अपना जवाब जो उस वक्त मंत्री थी उन्होंने जवाब दिया था, तो वो जवाब बहुत ही असंतोषजनक जवाब दिया था। उन्होंने कहा हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है, भारत सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं है कि जो कटाव हो रहा है, जो इरोजन हो रहा है, उसको हम रोक सकें। सीधे सीधे उन्होंने ये जवाब दिया था। नहीं, कटाव को नहीं सकते, विस्थापित के परिवारों के लिए जगह बिल्कुल, तो ये तो बिहार सरकार का काम है। हम लोग लगातार जिला प्रशासन पर दबाव बनाते हैं। तारिक साहब, यही समस्या मैं एक बात बताना चाहूँगा, जनता शिक्षित है, उसको ये पता नहीं कि काम किसका है। एमपी कहता है एमएलए का काम है, एमएलए कहता है एमपी का काम, बेचारी जनता तो फंस के रह जाती है। देखिए, हम लोग विपक्ष में हैं और विपक्ष की एक अलग भूमिका होती है, सरकार की अलग भूमिका होती है। जो सरकार में है उनको कार्यान्वयन करना होता है। विपक्ष का काम होता है कि उस मुद्दे को सरकार के सामने लाना, उसके नज़र में लाना और उस पर दबाव बनाना। तो हम लोग सदन का भी उपयोग करते हैं और प्रदर्शन के द्वारा, धरने के द्वारा जो भी जन समस्याएं हैं उसको उठाने की कोशिश करते हैं, जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 15 साल से नीतीश जी बिहार में लगभग मुख्यमंत्री हैं, और ये 15 साल का समय कोई छोटा समय नहीं होता है, पूरा एक युग बीत गया। और उसके बाद भी अगर बिहार बीमारू राज्य हो तो ये तो हम सब के लिए शर्म की बात है। ये बात मैं दुलाल गोस्वामी जी से करना चाहूँ, मंत्री भी रहे हैं, आप जदयू के बड़े नेता भी हैं, सरकार 10 साल से जदयू की है भी बिहार में, 8.5 साल से। ये विस्थापित परिवारों की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाया?
देखिए, हमको लगता है कि विस्थापितों का विषय को लोगों ने सही ढंग से उठाया नहीं, सरकार तक सही ढंग से बात पहुंची नहीं। आप तो मंत्री थे, आपके क्षेत्र भी नहीं, उस समय मेरे क्षेत्र में पड़ता भी नहीं था, हमको किसी से उस तरह की कोई बात, कोई संपर्क, कोई जानकारी भी, हम तो इंडिपेंडेंट थे, अपना करते थे। अभी है, और अभी इधर कुछ कुछ संज्ञान में आया जब हम कटिहार जिला घूमने लगे तब देखे। और बात विस्थापितों का अगर आप बरारी में चले जाइए तो बरारी है, नहीं, हम ललित भाई जो कहना, बरारी में 84 से विस्थापित पड़ा हुआ है। हाँ। इंदिरा कॉलोनी, नेहरू कॉलोनी बना के रखा है, किसी को जमीन का पट्टा अब तक नहीं मिला। उस समय किन की सरकार थी? तो ये चिंता की बात है, इसलिए सरकारों पे आरोप नहीं लगा। नहीं, हम बोले कि जो भी थे कर देना चाहिए। अभी कुछ लोगों को पट्टा मिला है, लेकिन जितने लोग विस्थापित हैं और प्रायोरिटी विशेष पर उन विस्थापितों में जो भूमिहीन है, मान लीजिए नदी का कटाव हो गया, ठीक है, मेरा टोटल जमीन कट गया और कहीं जमीन नहीं है, तो पूर्ण रूपेण विस्थापित हो गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जिसको जमीन है, तो चलिए उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो पूर्ण विस्थापित है, जो बांध में आ गया, कहीं आश्रय लेकर के है, उसके लिए होना चाहिए। और नहीं हुआ है तो सही में ये चिंता का विषय है। और इधर संज्ञान में आया है तो ये गंभीर मामला है। अब सब लोग इस विषय को उठा रहे हैं तो इसका समाधान होगा। मैं तो इस पर गंभीर हूँ, लेकिन हम कोई व्यक्तिगत रूप से इस पर ना घूमे हैं, ना दौड़े हैं, ना लोगों के बीच बात किए हैं। कुछ लोग आकर के हमको बताए तो इसका एक रिकॉर्ड देखे। सरकार कुछ विस्थापित परिवारों को जमीन दी है और कुछ विस्थापित परिवारों को जमीन दिया है तो सीओ अलर्ट करते हैं, तो शायद लोलैंड साइड का जमीन दे दिया होगा तो लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। तो समस्याएं हैं और इसका समाधान होना चाहिए। इस दिशा में मेरा भी प्रयास रहेगा। इलेक्शन और बाकी सब चीज़ अलग बात है। अब जब कोई विषय आता है तो उसको लेकर के हम लोग लड़ते हैं। हम तो सहृदय आदमी, कोई काम दिल से करते हैं। तो चुनाव के बाद ये विश्वास दिलाते हैं कि विस्थापित परिवारों की समस्या के समाधान में आप अपनी जदयू सरकार के से बात करके इसका समाधान ढूंढेंगे। निश्चित, एक खुशी की बात है कि समाधान ढूंढेंगे भी और उसका समाधान होगा भी। मैं अब एक और आरोप को लेके तारिक साहब के पास आता हूँ, जवाब देना चाहूँगा आपसे। आज से लगभग 2000 ईस्वी के बाद आप कांग्रेस छोड़ के चले गए एनसीपी में और 18 वर्ष के बाद फिर कांग्रेस में आ गए। हम अब रह नहीं सके। इसे राजनीतिक अवसरवादिता कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हम तो कांग्रेस परिवार से आते हैं। हमारे जो दादाजी थे वो फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। मेरे पिताजी भी स्वतंत्रता सेनानी थे। हम उस परिवार से आते हैं और कांग्रेस परिवार से आते हैं। किसी कारणवश ये सही है कि 1999 में हम कांग्रेस से अलग हो गए थे, लेकिन आज जो देश की हालत है उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प होना चाहिए राष्ट्रीय पैमाने में। और वो मजबूत विकल्प कांग्रेस ही हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस की जड़ें आज भी हर गांव में आपको मिलेगी। उसके चाहने वाले, उसके समर्थक। ये बात सही है कि पिछले 5 साल से हम सत्ता में नहीं हैं केंद्र में, लेकिन लगातार कांग्रेस का जो देश के साथ जो जुड़ाव रहा है, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हो या उसके बाद देश के निर्माण का सवाल हो, तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो देश में आज उसकी आवश्यकता है। देश के अंदर जिस प्रकार का एक माहौल बिगड़ रहा है, उस माहौल को ठीक करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब भेदभाव होगा, जब समाज में नफ़रत और घृणा पैदा होगी,
तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। ये हमारे देश की एकता अखंडता के लिए ठीक नहीं। हम सबको एक बात मान के चलना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं, हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश के लिए हम सब को काम करना चाहिए और हम सब की जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ठेका ले लिया है राष्ट्रवाद का कि हम ही राष्ट्रवादी हैं और बाकी सब जो है वो उनका एक प्रकार से राष्ट्र के प्रति उनका कोई लेना देना नहीं। ये जो एक भावना और एक तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, ये बहुत ही ख़तरनाक है। इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति राष्ट्रवाद पे विश्वास करता है और राष्ट्रवादी है। तो हमने इसीलिए ये सब देखने के बाद हमको लगा कि कांग्रेस को फिर से अपने उस पार्टी में जिस पार्टी ने हमको एक राजनीतिक पहचान दी उसमें वापस जाना चाहिए और उसको मजबूत करना चाहिए ताकि एक देश के अंदर एक मजबूत विकल्प तैयार हो, क्योंकि अगर मजबूत विकल्प नहीं होगा तो देश एक प्रकार से लोकतंत्र कमज़ोर होगा और तानाशाही के रास्ते पर जाएगा। थोड़ा गर्म पानी, तानाशाही से बचाना भी ज़रूरी है और इसके लिए हमने कांग्रेस को में जाने का विचार किया। हालांकि मैं मेंबर पार्लियामेंट था और अपनी पार्टी का हाउस में लोकसभा में नेता भी था, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी था। मतलब हमारे व्यक्तिगत अगर कुछ लाभ होता तो मुझे जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमने देखा कि देश हित में ये ज़रूरी है कि कांग्रेस को फिर से दोबारा मजबूत किया जाए। अब इस कार्यक्रम के अंतिम चरण की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। हम अंतिम में ये दोनों प्रत्याशी से जानना चाहेंगे कि अब दो वाक्यों में जनता से क्या कहना चाहेंगे, वो मुझे वोट क्यों देंगे, क्या कमिटमेंट होगा कटिहार की जनता से। पहले दुलाल गोस्वामी जी से 2 वाक्यों में आप जनता से कमिटमेंट कीजिए कि आपको वोट क्यों दें, और ये याद रख के कीजिएगा कि 5 साल में उस कमिटमेंट को पूरा करना है। देखिए, हम तो पहले भी एमएलए के रूप में, मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। मेरा पहला संदेश है कि हम प्रेम भाईचारा के साथ अपना कटिहार जिला का जो गौरवमय इतिहास है उसको स्थापित ये करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और कटिहार का विकास का काम करेंगे। लोग मौका देंगे तो पूरे दिल के साथ, लगन के साथ, जिस तरह से बारसोई बलरामपुर में हम विकास का काम किए हैं, लेबर मिनिस्टर रह कर के लेबरों के हित में जो काम किए, तो उसी ढंग से एक सांसद के रूप में पूरे लगन के साथ सेवा करेंगे और लोगों को कभी सांसद को खोजना नहीं पड़ेगा, सांसद लोगों को खोज करके उसका घर तक पहुंचेगा। ये काम हम करेंगे। तारिक साहब, आप दोबारा जनता के सामने हैं, 2 वाक्य में कहें कि आप जनता को अगले 5 साल में क्या देंगे अगर आप जीतते हैं तो। ये कमिटमेंट फिर मैं दोहराता हूँ, वो होना चाहिए जो 5 साल में आप पूरा करेंगे। देखिए, मुझे जब मौका मिला और ख़ास तौर पर जब केंद्र में हमारी सरकार थी तो केंद्र से जुड़े हुए सभी जो योजनाएं थी उसको कटिहार की धरती पर लाने में हम कामयाब हुए। चाहे वो रेल से जुड़ा हुआ हो, वो नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो, और यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई नहीं होती थी, उस समय हमने पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई शुरू की और कटिहार को तमाम देश के जो महानगर हैं उससे जोड़ने का काम हमने किया। नेशनल हाईवे जो आप देख रहे हैं, नेशनल हाईवे 81, ये हमने अपने वक्त में इसका कराया था, इस योजना को स्वीकार कराया था। तो जब मुझे मौका मिला है कटिहार के विकास का हमने किया है। छोटे से 2 वाक्य में बताएं, अगले 5 साल में क्या देंगे। अगले 5 साल में एक तो हम चाहेंगे कि जो आपने पहले अभी मुद्दा उठाया था कि गौशाला में और 4 जगह भगवान चौक पे हमने 6 जगह उसको चिन्हित किया है। 6 जगह हमने प्रयास किया था और उस 6 जगह पर उसको स्वीकार कर लिया गया है। बना नहीं है? हाँ, बनना शुरू हो गया। मनिया में बनना शुरू हो गया और एक प्राणपुर में बनना शुरू हो गया। 2 ओवरब्रिज बनना शुरू हो गया है
गौशाला और एक भगवान चौक, ये 2 अभी बाकी है, लेकिन उसका टेंडर हो चुका है। तो 6 हम लोगों ने अप्रूव कराया है पूरे कटिहार ज़िले में, जो रेलवे के द्वारा और नेशनल हाईवे के द्वारा उसका निर्माण होगा। कटिहार में और भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि उसको प्राथमिकता के आधार पर उसको पूरा किया जाए। कटिहार में और भी पुलों की आवश्यकता, फ्लाईओवर की और भी आवश्यकता है। बिल्कुल, ये जो अभी फ्लाईओवर है कटिहार में, इसका पूर्ण निर्माण होने वाला है। इसको और इसका चौड़ीकरण होगा और इसका विस्तार। नहीं, ऐसा भी है कि जैसे मंगल बाजार न्यू मार्केट से एक फ्लाईओवर उधर से डाल दें तो उधर की ट्रैफिक उधर चली जाए, गौशाला के पास एक ये कालीबाड़ी के पास डाल दें तो इधर की ट्रैफिक। देखिए, अगर केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो रेल के क्षेत्र में बहुत कुछ होगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। क्योंकि हम लोग का जब जैसा मैंने कहा कि जब सरकार रही तो हम लोगों ने रेल के क्षेत्र में बहुत कुछ किया है। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम किया है। यहाँ कटिहार में कम्युनिकेशन का जोनल ऑफिस हम लोगों ने बनवाया ताकि कम्युनिकेशन में भी कटिहार आगे बढ़े। तो शिक्षा के क्षेत्र हो या रेल हो या नेशनल हाईवे हो, हर चीज़ में हम लोगों ने कटिहार को आगे लाने का काम किया है। मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने के पहले उन लोगों से कुछ एक अपील करना चाहता हूँ कि जिन्होंने वोट का बहिष्कार करने का निर्णय लिया, घोषणा की है। ज़िले में 6 गांव है, बरारी का बिशनपुर है, मनसाई फुलाड़ा का लहसा गांव है, प्राणपुर का केहुनिया गांव है, काटघर है, तिगछिया है। इन सारे गांव ग्रामीणों से मेरी अपील है कि आप वोट का बहिष्कार न करें। आप वोट जरूर दें, वोट आपका अधिकार है। कोई नेता नहीं बोला कि आप वोट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। 70% से 68% हो जाएगा पोलिंग, कहीं लिखित में नहीं आएगा। उससे बेहतर है कि आपको कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है तो आप सबको जाके नोटा में वोट दे दीजिए, लेकिन वोट देने जरूर जाइए और अपने वोट की कीमत समझिए। अगर पूरा गांव नोटा में वोट देगा तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि नोटा में वोट क्यों जाता है, प्रत्याशी का चयन में गलत होता है। तो पहले तो मैं सारे जिले वासियों से, ऐसे लोगों से जिन्होंने वोट का बहिष्कार करने का निर्णय लिया, उनसे अपील करूँगा कि आप वोट दें। प्रत्याशी पसंद हो तो आप प्रत्याशी को दें। अगर कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है, 9 प्रत्याशी हैं मैदान में, कोई पसंद नहीं है तो आप नोटा में दीजिए, लेकिन वोट देने जरूर जाइए। बाकी जिले वासियों से मेरा अधिकार, मेरा आग्रह है, घर में आपको बहुत काम है, लेकिन देश आपका सबसे पहले है। छोड़ो वोट से, बहुत लोग आपको कहते मिल जाएंगे क्या फ़ायदा वोट दे के, सब तो ऐसे ही है। अरे आपकी जिम्मेदारी पहले है, आप घर से निकलिए, वोट दीजिए, नेता को बताइए कि आप जागरूक हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार कटिहार का वोट परसेंटेज 90% होना चाहिए और ये इसको आप बिहार में एक मिसाल बनाइए। अंत में कार्यक्रम को समापन में आनंद बख्शी की 2 पंक्तियां हैं मुझे याद आती हैं आज सबकी बातें सुनने के बाद, कि एक सब लोग नेता हैं, अपनी अपनी बातें करते हैं, लेकिन किसको किससे कितना सरोकार है ये इन पंक्तियों में दिखता है। ये पंक्तियां, प्यार न सीखा नफरत करना सीख लिया, इन लोगों ने लड़ना मरना सीख लिया, इनको जीना कौन सिखाए, एक नेता आए एक नेता जाए, नेता बदले बदले नसीब। दोस्तों, नेता आएंगे जाएंगे, अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपका नसीब ऐसा ही रहेगा। तो नसीब को बदलना है तो वोट दीजिए। इन्हीं सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आज का कार्यक्रम समाप्त करता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया, खुदा हाफिज, अलविदा। आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे जीडी गोयनका स्कूल, विश्व स्तरीय शिक्षा का बिहार में एकमात्र स्कूल, सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, एलईडी टीवी और केंटारो के अधिकृत विक्रेता, केबीसी ब्रॉडबैंड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित देश की सबसे तेज इंटरनेट। Parents sending their child outside Bihar because of no good schools can now send their children in GD Goenka Public School
in Ranipatra, Purnia, one of the best schools in the country, and help them become an all-rounder with their world-class facilities. The faculty at GD Goenka has been specially trained and called from outside to ensure high-quality education and to include practical studies. Apart from classroom studies, the students at GD Goenka put their learning in practical with the help of well-equipped labs. Beside academics, GD Goenka offers to a huge variety of extracurricular activities. Your child will have an opportunity to get well trained in horse riding, archery, shooting, squash, lawn tennis, billiards and basketball. Not only this, your child will even get an opportunity to enhance himself and herself in the field of music and dance. The students will get professionally trained to play various instruments like guitar, harmonium, flute. They will even learn various forms of dance like Bharatanatyam, Kathak, jazz and salsa. Your child will even have an access to a wide variety of books at GD Goenka's vast library where knowledge meets the student. The school provides a splendid facility of hostels for those who wish to stay in the campus, giving the environment of home away from home, is rich in nutrients, and there is a regular supervision over the quality of food, keeping in mind the health of residential and non-residential students. During summers, your child will not complain about the heat anymore, as GD Goenka is fully air-conditioned, so are its buses. At GD Goenka, the enthusiastic environment and the constant guidance from the teacher will set your child's future to a journey of success. As GD Goenka follows the ideology of no child left behind. To see your child prosper, please contact GD Goenka Public School, Mattia Chowk, Ranipatra, Katia Purnia Road, Purnia. The toll-free number is 1800 3131 2222. The phone numbers are 76728 22222 or 23 or 24. सती सिक्योरिटी सिस्टम्स डिजिटल कटिहार अभियान की शानदार शुरुआत। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विसेज, डिजिटल एलईडी टीवी, सीसीटीवी कैमरे, स्पाई कैमरे, मनी काउंटिंग मशीन, लैपटॉप एंड कंप्यूटर एसेसरी, एयर कंडीशनर, डिजिटल एलईडी लाइट्स, वीडियो डोर फोन्स, फायर अलर्ट्स, साथ में और भी बहुत कुछ। अब कटिहार बनेगा पूरी तरह डिजिटल एंड सिक्योर। सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, MG रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452 248601, a unit of KBC News। सभी प्रकार के केंट आरओ प्यूरिफायर के लिए संपर्क करें। केंट आरओ के अधिकृत विक्रेता सती सिक्योरिटी, MG रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452 242570, मोबाइल 9297979700। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस अब आपके शहर कटिहार में भी। केबीसी ब्रॉडबैंड सबसे तेज और अनइंटरप्टेड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित केबीसी ब्रॉडबैंड। संपर्क करें सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, MG रोड, कटिहार या केबीसी न्यूज कार्यालय, बनियाटोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 242570 और 248601, मोबाइल 9297979700 और 9430029220।